Okay, first of all, we discuss the test questions and answers. Okay, then we will start the topic. Okay, the first is database management system is, yes, what is the answer? Collection of interrelated data, collection of program to access data, collection of data describing one particular enterprise, and all of the above. Correct answer is all of the above. Okay, yes, all of the above. Yes. Okay. The second question is, which of the following is data model? Tell me which of the following is data model? ER model, relational model, or Entity relation. yes, all of the model. Huh? Yes, Arun, good. Okay, Data data model. model. ER model is also data model, relational model, object based data model, all are the data models. In an entity, sorry, in an ER model, dash is describing a database storing its data. Hmm. In an ER model, dash is described in a database by storing its data. Yes, entity. Very good. Okay. Entity is described in database by storing its data. Okay. Entity means table. Okay. Entity is the correct answer. Yes, a top to bottom relationships among the items in a database is established by which schema? Hierarchical, network, relational key, Hierarchical. hierarchical. Very good. Okay. Yes. Hmm. Yes. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आई होप Yes, सो. ma'am. Data independency means, what is the data independency? Data is defined separately and not included in the programs, or programs are not dependent on the physical attributes data. Programs are not dependent on the logical attributes data. Both B and C. What is the correct answer? Both B and C. Both B and C. Yes, very good. Okay. Which of following is generally used for programming tasks like creating the structure of relation, deleting relation? Structure of the relation. क्या लिखा है इसमें? Data definition language. Yes, DDL. Very good. Data definition language. Okay. Structure. If we are working with the structure of the table, it's called the data definition language. When we are working with the data, it's called the data manipulation language. Okay. Which of the following provides Which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuples into, delete tuples from, and modify tuples in the database? कौन से कमांड्स हैं? मीन्स जो इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड्स, अपडेट कमांड्स जो है वो कौन से कैटेगरी में फिट बैठेंगे? डीएमएल, डीडीएल, क्वेरी की रिलेशन स्कीमा? Query. डीएमएल. DML, data manipulation language. Okay. DML, insert, update, delete, all commands are comes under the DML, data manipulation language. Why? Because we are working with the data. ठीक है, हम लोग data insert करें, we are modifying the data, we are deleting the data. So data manipulation language. Okay. Okay. चलो. Which of the following given statement possibly contains the error? इसमें से कौन सा query wrong है? Last Both. wala. EM. Last wala, select employee ID where employee ID equals to 100 and last name. हाँ, क्यों? क्या क्या wrong है? What is the error? क्या है? क्यों wrong लग रहा है आपको वो? Error क्यों हो सकता है उसमें? First क्या है? Select star from employee where employee ID is equal to 10003. Select, second is select employee ID from employee where employee ID this. Select employee ID from employee and select employee ID where employee ID this and last name this. So yes, correct answer is D. ये correct है, मतलब
ये इसमें एरर है, बट वाई, क्या रीजन है कि इसमें एरर होगा? हाउ कैन वी करेक्ट दिस क्वेरी? करेक्ट कैसे करेंगे हम ये क्वेरी को? क्या इसमें मिसिंग क्या है, क्या रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, वाई दिस क्वेरी इज रॉन्ग, व्हाट इज द मिसिंग इन दिस क्वेरी? चलो देख के बताओ मुझे, देन मैं बोलूँगी कि यस आप अच्छे से क्वेरीज समझ में आ रहा है आप लोग। बताओ, देखो उसको, दिस वन इज द रॉन्ग, दिस वन इज द रॉन्ग। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी where employee ID is equal to this and last name is equal to this. What is the error in this line? क्या एरर है? मैम सिलेक्ट एम्प्लॉय के बाद सिलेक्ट एम्प्लॉय के बाद मैम फ्रॉम एम्प्लॉय आना चाहिए ना, वेयर एम्प्लॉय। यस, ओके, यस, रिंग की आपने बोला एंड इज करेक्ट, एंड हमने देखा ना, एंड वी कैन यूज एंड विद द क्वेरीज। हाँ यस, और कौन आंसर दे रहा था अभी? यस, किसने बताया अभी? अगेन रिपीट करो, जल्दी जल्दी बताओ, चलो। Table name is missing. Okay, in this query table name is missing. Select employee ID, select करो where employee ID, but कहाँ से select करो? Okay, टेबल नहीं, सॉरी, टेबल नेम इज मिसिंग। टेबल नेम है ही नहीं इसमें, तो कैसे पता चलेगा कौन सी टेबल में से लेना है? क्या लिखा है? सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी के वेयर एम्प्लॉय आईडी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट कहाँ से लेना है एम्प्लॉय आईडी? फ्रॉम वेयर? Okay, what is missing here? Table name. Select employee ID from employee where employee ID this and last name this. Okay, got it students? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, तो यहाँ पे टेबल नेम जो है वो मिसिंग है, क्योंकि टेबल नेम तो इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ सिंटेक्स। ओके, टेबल विदाउट टेबल नेम वी कैन नॉट रिट्रीव द डेटा। ओके, तो ऐसे ध्यान से देखना है। Yes, चलो, read the query carefully. Select employee name from department where department like dash computer science. In above given query, which of the following can be placed in query's blank portion to select department name that also contains computer as it is ending string? क्या लिखोगे इसमें? What is the correct answer? Third one. Okay, modulus. This one जो sign है that is modulus. Mod. Okay? Yes, because ending बोला है ना, ending. Okay, तो modulus. Good. Okay, चलो. Which of the following refer to the data about the data? इसको हम लोग बोलेंगे data about the data. Metadata. Yes, very good. Metadata. Okay, metadata. Yes. Which of the following refers to the level of data abstraction that describe exactly how the data actually stored? Describe how the data actually stored. Conceptual level. नहीं, फिजिकल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल मतलब क्या? आपका टेबल जो स्टोर हो रहा है दैट। ओके, हाउ द एक्चुअली स्टोर, डेटा एक्चुअल कहाँ पे स्टोर होगा? इन दी हार्ड डिस्क में। ओके, तो फिजिकल लेवल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिजिकल लेवल, क्योंकि क्या बोला है? एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअल में कैसे स्टोर हो रहा है, तो एक्चुअल में डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? इन दी हार्ड डिस्क, सेकेंडरी डिवाइस में। ओके, तो फिजिकल लेवल इज द करेक्ट आंसर। Okay, the term data refers to रो फैक्ट। raw facts and figures. Very good. Okay. Yes. Which one of the following is a type of data manipulation commands? इसमें से कौन सा कमांड डेटा मैनिपुलेशन कमांड है? Create. क्रिएट में डिलीट। यस अरुण, ओके, डिलीट, create and alter। create and alter से we can work with the structure। okay, database के structure के साथ हम लोग काम कर सकते हैं ना। we can create table, we can alter table। ये कौन सा हो गया? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड हो गया। कौन सा हो गया? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड हो गया। एंड डिलीट से we can delete the data of the table। okay, so उसको बोला है डेटा मैनिपुलेशन कमांड। yes, delete is the correct answer। which of the command is a type of data definition language? अभी बताओ इसमें, अजय।
for us, yes, create. Okay, create is a data definition language. Create table is a data definition language. Why? Because we are creating the table. Yes. Which of the following is top-down approach in which the entities higher level can be divided into two lower sub-entities? Specialization. Specialization. Yes. Specializations. Okay, very good. आई एम चेकिंग द चैट बॉक्स से कौन मुझे आंसर दे रहा है. ये जनरलाइजेशन नहीं आएगा रिंकल रिंकी. ओके, जनरलाइजेशन मतलब कि हम लोग क्लब कर रहे हैं ना. यस, यहाँ पे डिवाइड बोला है, एंटिटीज Yes. को डिवाइड बोला है, तो करेक्ट आंसर इज स्पेशलाइजेशन. ओके, नाउ इन दिस इसमें आंसर आएगा जनरलाइजेशन बिकॉज मल्टीपल लोअर एंटिटीज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फ्रॉम अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी. इसमें आएगा जनरलाइजेशन. ओके रिंकी. Yes. In the relation table, which of the following can be represented by terms attributes? In the relation table. Column. Yes, term attributes. Columns. Okay, columns को हम लोग attribute we can say. Yes, good. Which of the following command is used to delete the existing row in a table? Delete. Delete. Okay. Delete command is used. Okay. Then which one of the following command is used for removing or deleting a relation from the SQL database? Yes. Drop. Okay. Removing or deleting a relation from the SQL database. Relation मतलब मैं table को. Okay. Table को remove करने के लिए we have the drop. Yes. Good. Drop command. Okay. Yes. Structure query language. Okay. हाँ अभी next है. The term SQL stands for structure query language. Okay, structure query language. Yes, structure query language. Good. Okay, तो yes remove नहीं, remove किसने आंसर दिया? इर्शाद remove नहीं आएगा बेटा. Drop is used. Okay, in this ये जो question है, which one of the following command is used for removing or deleting the relation table? Table को delete करना है तो we have the drop command. Okay, we have the drop command. Sorry, table को delete करना है तो we have the drop command. Okay, drop and table name लिखोगे तो आपका जो table है that will be deleted. Okay, तो mostly questions जो थे questions easy. Okay, आपका unit 1 का भी test है अभी मैम आई थिंक मैम ने टाइम टेबल शेयर किया है ना, तो इन दैट टेस्ट ऑल्सो द क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही रहेंगे. ठीक है, ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 1 रिलेटेड ही. ओके, तो इतना कुछ इश्यू है नहीं, क्वेश्चंस इजी है. अच्छे से पढ़ा होगा तो यू कैन अटेम्प्ट दैट टेस्ट इजीली. ओके यस, चलो नाउ नेक्स्ट. यस, हमारा जो कंस्ट्रेंट है ना, दैट कंस्ट्रेंट अभी 2 to 3 कंस्ट्रेंट्स बाकी है. दैट वी विल कवर इन दी नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज आज मैं लैपटॉप से लेक्चर ले रही हूँ, तो डेस्कटॉप से जब मैं कल ले लूँगी तो देन वो मैं कंप्लीट करवा दूँगी. ठीक है, आज थोड़ा सा थियोरी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग कल टुमारो वी विल डू द प्रैक्टिकल. Introduction to MySQL aggregate functions. Okay, what is aggregate function? In the next lecture, first of all, we complete the remaining constraint types, then we will perform this aggregate functions. ठीक है, आज थोड़ा ये थियोरी देख लेते हैं, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे. कंस्ट्रेंट जो बाकी है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे टुमारो, एंड ये जो आज हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस, वो भी हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है, आज थोड़ा थियरी देख लो. यस, an aggregate function performs a calculation of multiple values and return a single values. Okay, what is MySQL aggregate function? What is the meaning of aggregate function? The aggregate functions perform a calculation. Okay, perform a calculation on multiple values and return a single value. Okay, मतलब आउटपुट कैसे मिलेगा? सिंगल वैल्यू
will be written as an output. Okay, so count, average and sum are the aggregate functions. Which are the aggregate function? Count, average, sum, minimum and maximum. यहाँ पे मैंने ऊपर लिखना भूल गई हूँ, minimum and maximum. Minimum and maximum all are also aggregate function. यहाँ पे मैंने mention किया है minimum and maximum. Okay, तो count, average, sum, minimum and maximum. These four are the aggregate functions. Okay, aggregate function. What is aggregate function? The aggregate function performs a calculation on multiple values and return a single value. Okay, you have to remember this definition. I will ask the question regarding this topic. Okay, aggregate function. Which are the aggregate function? What is aggregate function? Can we, what will be the output of aggregate functions? ऐसे type का जो questions होगा, that will be comes in the MCQ. Okay, yes. The first is count. The count function returns the number of rows that matches a specified criteria. Okay, what is the count function? The count function returns the number of rows. Returns the number of rows that matches a specified criteria. जो हमने columns है तो जो हमने rows दिया होगा वो count करके देगा. Okay, how many rows are there in the table? Average function returns the average value of a numeric column. जो column है वो column का if you want to find the average, so you can find the average using the average function, but numeric column. Okay, why? Because average जो है वो किसका निकलता है? Numeric values का ही निकलेगा. You cannot apply the average function to the name, तो address, city के लिए आप apply नहीं कर सकते. ऐसे column के लिए you cannot find the average. Okay, marks हो गया, या तो sum हो गया, या तो salary कोई कॉलम है, तो ऐसे कोई न्यूमेरिक कॉलम्स है कि जिसका आपको एवरेज फाइंड करना है. ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है, तो जो स्टूडेंट्स है उसका कितना परसेंट रिजल्ट है, तो परसेंटेज करके कॉलम है, तो आपको उसका एवरेज फाइंड करना है. तो सैलरी है कोई कॉलम, तो उसका अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो यू कैन फाइंड यूजिंग द एवरेज फंक्शन. द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम. ओके, द सम फंक्शन जो है क्या करेगा? रिटर्न्स द टोटल सम. सम ओके, एडिशन करके देगा. जितने भी सैलरीज है उसका आपको एडिशन करना है तो एडिशन करके देगा. ओके, तो दिस इज अ सम फंक्शन. इजी है, कुछ उसमें है नहीं. व्हाट इज द सिंटैक्स? हाउ टू राइट सिंटैक्स? काउंट कैसे लिखना है? सिंटैक्स थोड़ा आपको यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स. काउंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट, देन यू हैव टू राइट काउंट, COUNT, काउंट. select, count and bracket में column name. Okay, on which या तो the column you wanted to count. Okay, जो column है उसका values आपको count करना है, उसका name, column name you will write here. Okay, column name bracket में लिखेगा, bracket में आएगा. From table name where condition, अगर आपको condition देना है तो you can write the condition. Otherwise condition नहीं देना है, पूरे column के लिए apply करना है तो you can write only table name. Select, count, और कौन सा कॉलम नेम को काउंट करना है? फ्रॉम टेबल नेम. इफ यू वांट टू फाइंड द काउंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कि जिसका मार्क्स 70 से ज़्यादा है, तो जिसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, वैसे कितने रिकॉर्ड्स है, ऐसा कुछ काउंट करना है तो अब कंडीशन भी यू कैन अप्लाई ऑल्सो कंडीशंस. ओके, तो विदाउट कंडीशन भी होगा, वेयर कंडीशन भी होगा. एवरेज, व्हाट इज एवरेज का सिंटैक्स? सेम ही है. सिलेक्ट, AVG. एवरेज के लिए यू हैव टू राइट AVG. कॉलम नेम. ओके, कौन से कॉलम का आपको एवरेज फाइंड करना है, दैट यू हैव टू राइट फ्रॉम टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन. वेयर कंडीशन मैंडेटरी नहीं है. ओके, अगर आपको वेयर कंडीशन लिखना है, मतलब इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तो यू कैन राइट, अदरवाइज उसको स्किप कर दो तो भी चलेगा. सम सेम है. सिलेक्ट, सम, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन. ओके, स्मॉल, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है. सिलेक्ट, count, product ID from products. Okay, from products is the table name, product ID is the column name. तो कितना रोज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम है उसमें कितना एंट्रीज किया हुआ है, नंबर ऑफ रोज जो है दैट विल बी काउंटेड. ओके, फॉर एग्जांपल 10 रिकॉर्ड्स डाले तो आंसर विल बी 10. कोई कंडीशन नहीं है तो एवरी जो रोज है वो काउंट करके देगा. एवरी रोज जो है वो काउंट करके देगा फॉर द प्रोडक्ट आईडी के लिए. किसके लिए? प्रोडक्ट आईडी के लिए. सेम वैसे ही सिलेक्ट,
एवरेज प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट के टेबल में से जो प्राइस कॉलम है उसका एवरेज फाइंड करके देना है। तो आप क्या लिखोगे, एवीजी एवरेज। अगर आपको कंडीशन चाहिए तो यू कैन राइट द कंडीशन वेयर आईडी ग्रेटर देन ये है, तो फिर जिसका वेयर प्राइस ग्रेटर देन ये, जो भी कंडीशन आपको पुट करना है यू कैन पुट हियर, ओके, यू कैन राइट हियर। उसके बाद सेमीकोलन। सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स है टेबल नेम, सम फाइंड करके दो किसका, क्वांटिटी, जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं दैट इज अ कॉलम, ओके, जो ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं ना दैट इज अ कॉलम, वो क्या है हमारा कॉलम नेम, ओके, ब्रैकेट में जो है दैट इज अ कॉलम नेम। मिनिमम एंड मैक्सिमम, ओके, तो नेम से वी कैन अंडरस्टैंड मिनिमम इज a written smallest value of selected column of the selected column, ओके, जो कॉलम सिलेक्ट किया है, जो कॉलम का नेम हमने स्पेसिफाई किया उसमें से मिनिमम वैल्यू विल बी रिटन। मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, इफ यू वांट टू राइट कंडीशन तो यू कैन राइट, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ओके। सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम उसका मिनिमम फाइंड करना है वो आप लिखोगे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, सेम मैक्स के लिए भी, ओके। एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने, ओके, तो थोड़ा हम लोग इसका देख लेते हैं। Show databases, use variety, show tables, okay, select, start from customer, तो इसमें फोन नंबर है तो वी कैन नॉट काउंट, ओके। कोई और देखते हैं हम लोग, केवल अगर है तो उसमें और क्या है, रिजल्ट, ओके, मार्क्स कॉलम है तो मार्क्स कॉलम के लिए वी कैन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द काउंट, ओके, ये कस्टमर टेबल है उसके लिए हम लोग काउंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स है बताओ मुझे। आई वांट टू काउंट, ठीक है, ये जो काउंट करना है मुझे कस्टमर टेबल में आईडीज कितना है वो मुझे काउंट करना है, ठीक है। हाउ कैन आई, हाउ विल आई राइट, SELE सिलेक्ट, SELECT सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करेंगे हम लोग, काउंट, यस, सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम, ठीक है, आईडी फ्रॉम टेबल नेम विच इज अ टेबल नेम कस्टमर, ठीक है, हम लोग कस्टमर का फाइंड करते हैं, ओके। तो कितना आईडीज है, 5, 1 2 3 4 5, कस्टमर आईडी कितना है, 5 है, ठीक है। सिलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर, नाउ रिजल्ट के टेबल के लिए वी आर काउंटिंग, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम रिजल्ट, ओके। तो कितना है, 2 रोज है, ओके, ठीक है। चलो काउंट तो हो गया, नाउ एवरेज हम लोग देखते हैं, ठीक है, सॉरी, किसका एवरेज फाइंड करते हैं हम लोग, रिजल्ट, एक मिनट है, रिजल्ट में कितना है, 2 ये मार्क्स है, ठीक है, इसका काउंट करते हैं एवरेज हम लोग, ओके। तो सिलेक्ट, SELECT सिलेक्ट AVG एवरेज, किसका एवरेज काउंट करना है, मार्क्स, MARKS मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम, कौन सा टेबल है, रिजल्ट, ओके। तो एवरेज कितना हो गया, 57, ओके।
एवरेज कितना हो गया 57 मार्क्स। ओके, कौन से टेबल में से, रिजल्ट टेबल में से। नाउ वी आर फाइंडिंग द सम, एडिशन। ओके, एडिशन, SELECT, सिलेक्ट सम। इजी है फंक्शन, कुछ नहीं है, ओनली आपको याद रखना है विच आर दी एग्रीगेट फंक्शन। मार्क्स, सिलेक्ट मार्क्स, सॉरी सम करना है, मार्क्स करना है, कौन से टेबल में से, रिजल्ट टेबल में से, RESULT, रिजल्ट। ओके, टोटल कितना हो गया 114, बराबर है कि नहीं काउंट, क्योंकि 25 + 89, ओके 114 आ गया दोनों का एडिशन। ओके, सम आ गया, एवरेज हो गया। नाउ मैक्सिमम हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, यही टेबल में से, विच टेबल, फ्रॉम द रिजल्ट टेबल में से वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो सिलेक्ट मैक्स, इसमें से मैक्स फाइंड करना है मार्क्स कॉलम का, ठीक है, मार्क्स जो कॉलम्स है उसके लिए हमको मैक्सिमम फाइंड करना है फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो 89 इज अ मैक्सिमम। और मिनिमम हमको फाइंड करना है, तो सिलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम, कौन सा टेबल है, रिजल्ट। 25 से मिनिमम मार्क्स। क्लियर, इजी है, कुछ भी नहीं है। एवरेज, सम, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नो? क्लियर? Yes. ओके ओके ओके, चलो नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, एक customer. Okay, yes, now I want to update the records के जिसका फोन नंबर 78676, उसका मुझे नेम चेंज करना है या तो आईडी चेंज करना है। तो हाउ कैन आई राइट द क्वेरी? आई वांट टू चेंज द रिकॉर्ड के उस फोन नंबर इज 78676। I want to update the ID. चलो ID, I want to update the ID of this customer के whose phone number is 78676. What will be the query? क्या query होगा? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस, ओके, अपडेट क्वेरी, यस, ओके, अपडेट क्वेरी लिखेंगे। अरुण, कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट अपडेट क्वेरी? क्या लिखूँ मैं, बताओ मुझे। आई वांट टू अपडेट द आईडी ऑफ कस्टमर whose फोन नंबर इज 78676। तो हाउ टू राइट क्वेरी, कैसे मैं अपडेट करूंगी उसको, बताओ चलो जल्दी से। क्या लिखूँ पहले? ऑलरेडी किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेरी, अपडेट क्वेरी। कौन बोलेगा? ओके, अपडेट, अपडेट, आईडी नेम, डायरेक्ट आईडी लिख दूं मैं? सिंटेक्स बताऊं? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम। ओके, वेरी गुड, गुड सरफराज, अरुण, वेरी गुड। तो अपडेट टेबल नेम, आपको दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे, अपडेट टेबल नेम, सेट देन कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, अपडेट टेबल नेम, व्हाट इज द टेबल नेम? कस्टमर। सिंटेक्स याद रखना है स्टूडेंट्स, स्पेलिंग राइट है, CUSTO, स्पेलिंग रॉन्ग है ना, CUSTOMER, कस्टमर। सेट, व्हाट आई वांट टू सेट, आईडी, क्या सेट करना है? अपडेट कस्टमर सेट आईडी इक्वल्स टू 3, वेर फोन नंबर इक्वल्स टू 78676। ओके,
query okay, row affected. Now we will see ये change हुआ है कि नहीं. Select star from table name. हो गया ID 3. ओके, जिसका फोन नंबर 7867 था उसका ID 2 था. उसका ID अभी हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, चेंज कर दिया. ओके, तो दिस इज अ अपडेट क्वेरी. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द क्वेरी सिंटैक्स. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद रखना है उसको, ऐसे भूलना नहीं है. ओके क्लियर. ओके, वन मोर ट्राई करें क्या, तो आपको याद हो जाएगा. अपडेट कस्टमर सेट के बाद कॉलम नेम जो आपको सेट करना है, ठीक है, उसका हम लोग आईडी चेंज कर देते हैं. सेट आईडी इक्वल्स टू 4 where फोन नंबर इक्वल्स टू 6576. ओके, हो गया. नो ओके, आईडी इक्वल्स टू 4 1 2 3 4. नाउ अभी इसका बाकी, तो दिस इज अपडेट क्वेरी. ओके, नाउ डिलीट. आई वांट टू डिलीट दी रोज के जिसका आईडी 2 है. तो व्हाट विल बी द क्वेरी, आई वांट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड्स के जिसका आईडी 2 है. बस मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो क्या क्वेरी लिखूंगी मैं. डिलीट करना है, डिलीट क्वेरी. ओके इरशाद, यस डिलीट क्वेरी. कैसे लिखेंगे डिलीट क्वेरी, DELE डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम where id इक्वल्स टू 2. ओके क्वेरी. ओके, नाउ हम लोग देखते हैं. हो गया. 2 रिकॉर्ड्स जो था GGG RTT दोनों का आईडी 2 था. सॉरी, ये वाला GGG एंड RTT, ठीक है, ये हमने चेंज करने के बाद हमारा ये टेबल था. इन दिस टेबल 2 रिकॉर्ड्स था जिसका आईडी 2 है, ठीक है, वो हमारा डिलीट हो गया. नाउ 1 3 4. तो दिस इज ए डिलीट क्वेरी. ओके, डिलीट क्वेरीज. क्वेरीज भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर द क्वेरीज. क्लियर. ओके, in the next lecture we will study the constraint जो हमारा बाकी है ना. constraints हम लोग कंप्लीट करेंगे. ऑलरेडी वी हैव कवर दी एवरेज फंक्शन, तो हमने कवर कर लिया. constraint कंप्लीट करेंगे हम लोग. देन न्यू टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. व्यूज करके एक टॉपिक है, दैट वी विल स्टार्ट. ओके, व्यूज या तो फिर ज्वाइन सेट ऑपरेटर देखते. एग्रीगेट फंक्शन तो वी हैव कंप्लीटेड. ज्वाइन सेट ऑपरेटर व्यूज, इसमें से कोई एक टॉपिक वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तो आज हम लोग इतना रखते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू. कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे. यस PDF शेयर करती हूँ मैं, PDF शेयर करती हूँ. ओके, यस आई विल शेयर द PDF. आफ्टरनून में करती हूँ मैं, क्योंकि अभी ये लैपटॉप से है, डेस्कटॉप में मेरा सब पड़ा हुआ है. तो इन द आफ्टरनून आई विल शेयर ऑल द जो भी नोट्स वगैरह है वो. ठीक है, चलो. एनीवन हैज एनी क्वेरी, कोई क्वेरी है. एग्रीगेट फंक्शंस रिमेंबर. ओके, एग्रीगेट फंक्शंस याद रखो. विच आर द एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज, सम, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम. दिस आर द एग्रीगेट फंक्शंस. ओके, आपको याद रखना है.